Hey everyone, I'm Shweta Goyal and welcome back to my channel Easynomics. तो आप सब कैसे हो? I'm assuming that all of you are absolutely fine and taking good care of your health. So, as you all know, and as I promised to everyone, that I will come with a series of lectures where I'll be teaching you entire macroeconomics, just like I taught you the microeconomics. सो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने क्लासिकल थ्योरी शुरू करी थी एंड उसमें हमने लेबर थ्योरी थोड़ी सी पढ़ी थी एंड वी विल कंटिन्यू विद द लेबर थ्योरी इन टुडेज क्लास एंड वी विल दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द video where we will be discussing the labor equilibrium, that what all factors affect the labor demand, labor supply, what is the difference between nominal wage, real wage. We are going to discuss all of that. So without any delay, let's get started. So let me quickly tell you कि हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ लिया था and after that we'll begin with today's class. तो पिछली क्लास में वी हैव रेड अबाउट द अजम्पशन और मैं इस पिछली क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी सो दैट जिसका मिस हुआ है वो वहां से देख सकता है. सो हमने अजम्पशन पढ़ी थी. अजम्पशन में हमने सेज लॉज पढ़ा था जिसमें हमने बोला था सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड. सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड. देन हमने सेकंड पढ़ी थी दैट वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी, दैट वेज एंड प्राइसेस आर कंप्लीटली फ्लेक्सिबल. जितनी जल्दी आपकी वेजेस में चेंज आएगा इमीडिएटली आपके प्राइसेस चेंज हो जाएंगे विदाउट एनी डिले. तीसरा हमने पढ़ा था देयर इज अ परफेक्ट कंपटीशन इन बोथ द मार्केट्स. factor and the product, there is perfect competition in both the markets. And we have also studied yes, diminishing returns to factors, diminishing returns to factors of production. So basically diminishing returns in production function. ठीक है, तो हम ये चीज पढ़ चुके हैं. बेसिकली योर एमपीएल इज डिक्लाइनिंग, इसका मतलब ये था. तो हमने ये चार अजम्पशन पढ़ी थी. इस चार अजम्पशन के बाद मैंने आपको बताया था दैट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेबर डिमांड एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लेबर सप्लाई. सो लेबर डिमांड का मतलब होता है, लेबर डिमांड का मतलब होता है दैट at different wage rate how much labor is demanded by the producer, or you can say in other way as well that what is the willingness to pay, that what is the willingness to pay of the producers at different levels of demand of labors. ठीक है, सो ये आपकी होती है willingness to pay and labor supply आपको बताता है willingness to work. ठीक है, willingness to work basically at different wage rate how much labor I am ready to supply, that is known as the labor supply. तो ये हमने दो लेबर डिमांड एंड लेबर सप्लाई का कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया था. After that, we have studied that labor demand is affected by three factors. Similarly, labor supply is also affected by three factors. Labor demand आपकी affect होती है किस किस से? Prices of the commodity, एंड लेबर सप्लाई भी आपकी प्राइस ऑफ कमोडिटी से अफेक्ट होती है. अब मैं आपको बता देती हूँ कैसे अफेक्ट होती है. प्राइस ऑफ कमोडिटी जो है अगर बढ़ेगा, if your price of commodity increases, then the producer will increase the production, and for increasing the production, producer will demand higher labor, more labor, and if he will demand more labor, then he will be ready to pay more wages as well. So if your prices of the commodity increases, your labor demand increases. ठीक है, similarly labor supply पे आ जाओ. If the prices of the commodity increases, it means as a labor, let's say मैं ये पेन खरीद रही थी. ठीक है, मेरी जो इनकम थी उससे मैं ये पेन खरीद रही थी. अब इस पेन का प्राइस बढ़ गया है. तो पहले ये पेन 10 रुपए में आ जाता था, अब ये पेन 15 रुपए में आता है. तो मैं अपने ऑनर को जाके बोलूंगी कि बाहर महंगाई हो गई है तो आप मेरी वेजेस बढ़ाओ, आप मेरी वेजेस बढ़ाओ. ठीक है, या फिर अब मैं सेम घंटे जो काम करूंगी वो ज्यादा वेजेस में करूंगी. ठीक है, आई विल बी सप्लाइंग द सेम नंबर ऑफ लेबर आवर्स एट हायर वेजेस, or I will reduce my labor hours
फॉर द सेम वेज रेट। अगर आप वेज रेट सेम रखोगे तो मैं अपनी लेबर सप्लाई कम कर दूंगी, और अगर अब मैं सेम जो नंबर ऑफ लेबर आवर्स में सप्लाई करूंगी उसके लिए आई विल बी डिमांडिंग दी हायर वेजेस। तो आपका लेबर सप्लाई कर अपवर्ड स्लोपिंग है तो वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, सो आपका लेबर डिमांड एंड लेबर सप्लाई दोनों ही प्राइसेस ऑफ कमोडिटी से अफेक्ट होते हैं। बस ये एक ही फैक्टर है जो दोनों में कॉमन है, उसके बाद दोनों फैक्टर्स जो है वो कॉमन अलग अलग है। ठीक है। लेबर डिमांड आपका अफेक्ट होता है चेंज इन टेक्नोलॉजी से, एंड लेबर आपका ये अफेक्ट होता है कैपिटल इंप्लॉयड से। ठीक है, सिमिलरली आपका लेबर सप्लाई अफेक्ट होता है चेंज इन बिहेवियरल पैटर्न। लेट्स से मेरा मन कर रहा है, मैं अब ज्यादा लोगों का मन कर रहा है काम करने का, सो दे विल बी डूइंग मोर वर्क एंड लेबर सप्लाई विल इंक्रीज। सिमिलरली अगर सिमिलरली इमिग्रेशन या इमाइग्रेशन यहाँ से लोगों का बाहर चले जाना या बाहर के लोगों का यहाँ आ जाना, उससे लेबर सप्लाई बढ़ती या कम हो जाती है। सो ये हमने फैक्टर्स पढ़े थे। अब हम इसको ग्राफ पे देखेंगे, लेकिन ग्राफ पे देखने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो आपका लेबर डिमांड और लेबर सप्लाई है वो आपका क्लासिकल थ्योरी में रियल वेज पे डिपेंड करता है। ठीक है, लेट्स सी, देखो आपका जो लेबर डिमांड कर्व है वो मैंने आपको बताया था, दैट विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग as you increase the wages, your demand for labor decreases because cost of production increases for the producers। तो जैसे जैसे आपकी वेजेस बढ़ेगी वैसे वैसे लेबर आवर्स जो है, जैसे जैसे आपकी वेजेस बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी लेबर आवर आप कम डिमांड करोगे। ठीक है, लेकिन आपका जो लेबर सप्लाई कर्व होता है वो आपका अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। वो आपका अपवर्ड स्लोपिंग कर्व क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे वेजेस बढ़ेंगी आई विल बी मोर रेडी टू विलिंग टू वर्क। ठीक है, आई विल बी मोर विलिंग टू वर्क। तो लेबर सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग बट लेबर डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट होते हैं वो आपका लेबर मार्केट का इक्विलिब्रियम होता है। अब कुछ लोगों ने क्वेश्चंस पूछा था कि दे डिड नॉट गेट द डिफरेंस बिटवीन वेजेस एंड रियल वेजेस। अब मैं आपको बता दूं, जो ये चीज डिसाइड हो रही है दैट इज योर नॉमिनल वेज। नॉमिनल वेज का मतलब होता है कैश में मुझे कितनी इनकम मुझे मिली है, दैट इज योर नॉमिनल वेज। नाउ वी हैव वन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेज एज वेल, दैट इज योर रियल वेज। रियल वेज का मतलब होता है मेरी जो सैलरी है मैं उससे एक्चुअली कितना खरीद सकती हूँ, एक्चुअली कितने नंबर ऑफ गुड्स आई कैन परचेज फ्रॉम द मार्केट, दैट इज नोन एज माई रियल वेज। तो रियल वेज का मतलब होता है मेरी जो भी नॉमिनल वेज है डिवाइडेड बाय प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी, राइट। अगर मेरी नॉमिनल वेज, तो मेरी जो रियल वेज होगी वो क्या होगी, भाई जितने भी मेरी वेज है, लेट्स से मेरी 1000 रुपए वेज है और मुझे ये पेन खरीदने हैं और एक पेन का प्राइस 10 रुपए है, तो मैं ऐसे 100 पेन खरीद सकती हूँ। नाउ लेट्स से मेरी नॉमिनल इनकम बढ़ के 2000 हो गई, और अगर प्राइस सेम है तो मैं अब सेम 200 पेन खरीद सकती हूँ। लेकिन लेट्स से इनकम 1000 ही है लेकिन आपके प्राइसेस बढ़ गए, 20 हो गए, तो अब मैं 1000 इनकम में सिर्फ 50 पेन ही खरीद सकती हूँ। सो एक्चुअली क्लासिकल्स के लिए रियल वेज मैटर करती थी, उनके लिए नॉमिनल वेज वो नहीं कंसिडर करते थे। ठीक है, नॉमिनल वेज उन्होंने नहीं कंसिडर करी, उन्होंने बोला कि जो एक्चुअली इकोनॉमी है वो रियल वेज पे काम करती है, वो आपकी क्या करती है, रियल वेज पे काम करती है। नाउ आई विल बी ड्रॉइंग अ डायग्राम टू मेक यू क्लियर अबाउट द things. So first of all, you should know that this is your labor demand and this is your labor supply. I am taking nominal wages here and labor hour here. This is your labor demand and this is your labor supply. ठीक है, this is your labor demand and labor supply. Now I'll be drawing the same diagram नीचे. यहाँ पे I'll be taking labor hour. बट यहाँ पे आई विल बी टेकिंग रियल वेजेस। यहाँ पे मैं क्या लूंगी, रियल वेजेस। रियल वेजेस का मतलब होता है W बाय P। यहाँ पे मैंने सिर्फ लिए W, लेकिन यहाँ पे आई एम टेकिंग W बाय P एज वेल। ठीक है, तो लेट्स से मैं इसको नीचे ले आई एंड अर्लियर मेरा जो लेबर डिमांड
एंड जो लेबर सप्लाई है वो मेरा ये कर्व है, लेबर डिमांड है और ये लेबर सप्लाई है एट रियल वेजेस पे, ठीक है, एट रियल वेजेस पे। तो ये मेरा क्या है, अब मेरा सिर्फ प्राइजेस का फंक्शन नहीं है, इट इज अ फंक्शन ऑफ रियल वेज, इट इज अ फंक्शन ऑफ रियल वेज। अब मैं यहाँ पे रियल वेज ले रही हूँ। अब मैं आपको क्या करूंगी नाउ, पता है आपको क्या करना है, आपको क्या सीखना है, आपको देखना है कि इसमें से किसी भी फैक्टर में चेंज आता है तो आपके मार्केट इक्विलिब्रियम में कितना चेंज आएगा, इसमें से किसी में भी चेंज आता है तो आपके मार्केट इक्विलिब्रियम में कितना चेंज आएगा, यू हैव टू सी दैट, ठीक है। अब मैं आपको सिखाती हूँ ऐसे कैसे सीखना है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, हैव यू हर्ड द लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल? लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल पढ़ा था माइक्रो में, उसमें हमने 3 फेजेस पढ़े थे। उसमें मैंने आपको बोला था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कि पहले इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, फिर इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट एंड देन डिक्रीजेस। ये कब कब होता है, जब हमारा एमपी इंक्रीजेस, एमपी डिक्रीजेस एंड देन एमपी बिकम्स नेगेटिव, ठीक है। तो ये हमने टीपी और एमपी पढ़ा था फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इन योर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये हमने पढ़ा था माइक्रो में। अब आपकी इकोनॉमी में लेट्स से 100 यूनिट्स हैं, तो जब आप 100 इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी करोगे दैट विल बी माइक्रो इकोनॉमिक्स, लेकिन वो सारी 100 मिलके कलेक्टिवली मैक्रो बनाएंगी। तो जो सारी डिसीजन फर्म्स जो है डिसीजन चूज करेगी वही मैक्रो लेवल पे चूज होगा। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है वो आपका हमेशा फर्म जो है वो सेकेंड स्टेज में ऑपरेट करती है, दैट इज योर ऑप्टिमम। तो जो फर्म का प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो हमेशा सेकेंड स्टेज में आता है। तो जब इंडिविजुअल फर्म, सारी फर्म्स सेकेंड स्टेज में ऑपरेट करेंगी तो ओवरऑल इकोनॉमी का जो प्रोडक्शन फंक्शन होगा वो भी सेकेंड स्टेज में आएगा, पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स का प्रोडक्शन फंक्शन भी सेकेंड स्टेज में होगा। एंड इसके अलावा एक चीज और बता दूं, हमने ये भी अज्यूम करा है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू प्रोडक्शन फंक्शन, यहाँ पे वी हैव द डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर्स, तो इस फेज में ऑपरेट होगा। तो अगर इस फेज में ऑपरेट होगा तो कैन आई से दैट कि मेरा जो पूरा प्रोडक्शन फंक्शन होगा, जो मेरा प्रोडक्शन फंक्शन होगा मैक्रो लेवल का, दैट विल बी लाइक दिस, y इज इक्वल्स टू फंक्शन, बस आप y लिख लो। सो कैन आई से, इसको मैं बोल सकती हूँ आउटपुट और इसको मैं बोल सकती हूँ लेबर आवर। तो ये मेरा हो गया मैक्रो इकोनॉमिक्स का प्रोडक्शन फंक्शन इन क्लासिकल्स। मैंने सिर्फ सेकंड स्टेज लिया है क्योंकि जो जो इंडिविजुअल फॉर्म चूज कर रही है वही मैक्रो का फंक्शन बनेगा। सो मैंने सिर्फ सेकंड स्टेज को कंसिडर किया है और ये आपका प्रोडक्शन फंक्शन आ गया, ठीक है। तो नाउ यू आर क्लियर विथ 3 डायग्राम। तो लेट्स से आपने इतने लेबर एम्प्लॉय कर लिए, इतने लेबर को एम्प्लॉय करके आपका ये आ गया प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। आपका ये हो गया लेबर आवर, ये हो गया आपका y और ये हो गया आपका आउटपुट। जितना ज्यादा लेबर करोगे उतना ज्यादा आउटपुट बढ़ेगा, बट एट डिक्रीजिंग रेट, ठीक है, क्योंकि हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो डिक्रीजिंग है। तो ये 3 डायग्राम क्लियर है। अगर ये 3 डायग्राम क्लियर है तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो अब आपका ये हो गया 3 डायग्राम। नाउ वी विल सी कि कौन सा फैक्टर चेंज होने की वजह से एक्चुअली कितना चेंज आता है इकोनॉमी में, ठीक है। कौन सा फैक्टर चेंज होने की वजह से क्या चेंज आता है आपके पूरे डायग्राम में, ठीक है। सबसे पहले हम वो फैक्टर देखेंगे जो दोनों में कॉमन है, दैट इज योर प्राइस ऑफ द कमोडिटी चेंजेस, ठीक है। तो लेट्स ड्रॉ इट। अभी मैं आपको बोल रही हूँ प्राइस ऑफ द कमोडिटी चेंजेस। लेट्स से प्राइस ऑफ द कमोडिटी, बताओ प्राइस ऑफ द कमोडिटी लेट्स से इंक्रीज है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। लेट्स से प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस। तो मेरा ये डायग्राम था, ये मेरी लेबर डिमांड थी, ये मेरी लेबर सप्लाई थी, यहाँ पे लेबर, यहाँ पे लेबर, यहाँ पे लेबर, यहाँ पे मैंने वेजेस लिए थे, यहाँ पे मैंने रियल वेजेस और यहाँ पे मैंने आउटपुट। तो जो इतना आ रहा था ये मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन अज्यूम करते हैं ना हम, तो ये आपकी मतलब पहली नॉर्मल सिचुएशन है ये आपकी, ठीक है। और इस लेवल पे बेसिकली वी वर प्रोड्यूसिंग दिस मच लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है, हम इतना लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे थे। अब हमने बोला प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस। सो इफ योर प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस, इसकी वजह से क्या होगा, आपकी लेबर डिमांड विल इंक्रीज एंड लेबर सप्लाई विल डिक्रीज।
लेबर डिमांड विल इंक्रीज एंड लेबर सप्लाई विल डिक्रीज। देखो कैसे, लेबर डिमांड आपकी बढ़ेगी क्योंकि फॉर द सेम नंबर ऑफ आवर्स यू आर रेडी टू पे हाई बिकॉज नाउ यू आर गेटिंग हाई। देखो अब यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट आता है रियल वेज का, यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट आता है रियल वेज का। अभी मैं सिर्फ नॉमिनल वेज की बात कर रही हूँ, अभी आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द नॉमिनल वेज। अभी सिर्फ नॉमिनल वेज कंसिडर करो। लेट्स से मेरी इनकम बढ़ गई, मुझे पता है मैं ये पेन 20 रुपए का बेच सकती हूँ, तो मैं ज्यादा लेबर्स को एम्प्लॉय करूंगी। ज्यादा लेबर्स को एम्प्लॉय करने के लिए मैं क्या करूंगी, उन्हें ज्यादा पे करने के लिए रेडी हो जाऊंगी, क्योंकि मेरे लिए लोग ज्यादा काम कर, डिमांड बढ़ाऊंगी तो वेजेस बढ़ेंगी। तो वैसे भी वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी है, प्राइसेस बढ़ाओगे तो वेजेस बढ़नी पड़ेगी। क्यों बढ़नी पड़ेगी? क्योंकि अगर आप प्राइस बढ़ाओगे कमोडिटी का, अपना प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो लेबर की डिमांड बढ़ाओगे, लेबर की डिमांड बढ़ते ही वेज बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आपने अगर लेबर डिमांड बढ़ाई तो आपका लेबर डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू एल डी डैश। बट अब महंगाई हो गई है, महंगाई होने की वजह से पीपल विल से कि अब भाई अब आप हमारी वेजेस बढ़ाओ, हम इतने में तो काम नहीं करेंगे। सो वो फॉर वर्किंग द सेम नंबर ऑफ आवर्स दे विल से इंक्रीज द वेजेस। वो कहेंगे भाई अगर आप चाहते हो हम सेम घंटे काम करें तो हमारी वेजेस बढ़ाओ, अदरवाइज हम इस वेज पे काम नहीं करेंगे, हम अपनी सप्लाई कम करेंगे। तो आपका जो आपका लेबर डिमांड एंड लेबर सप्लाई है वो इक्वल प्रोपोर्शन में शिफ्ट हो जाएगा। तो आपकी इकोनॉमी में वेजेस बढ़ जाएंगी लेकिन आपकी लेबर डिमांड उतनी ही रहेगी। ऐसा क्यों हुआ? आपकी जो रियल वेज है दैट इज इक्वल टू W बाय P। तो आपके प्राइजेस बढ़ने से इक्वल अमाउंट से आपकी वेजेस बढ़ गई, जिसकी वजह से रियल वेज रिमेन्ड कांस्टेंट। इसलिए आपके नीचे वाले डायग्राम में कोई भी चेंज नहीं आएगा, नीचे वाले डायग्राम में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, नीचे वाले डायग्राम में कोई भी चेंज नहीं आएगा, रियल वेज उतनी ही रहेगी। और ऐसा क्यों हुआ? वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से हुआ। अगर रियल वेज में चेंज नहीं आया तो आपकी लेबर डिमांड में भी कोई चेंज नहीं आएगा, और लेबर डिमांड में कोई चेंज नहीं आया तो आउटपुट में भी कोई चेंज नहीं आएगा, जिसकी वजह से जो आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व है दैट विल रिमेन वर्टिकल। एग्रीगेट सप्लाई कर्व shows the relation between the price and output। प्राइस एंड आउटपुट के बीच में रिलेशन दैट आप कितना भी प्राइस बढ़ा लो, प्राइस बढ़ने से आउटपुट नहीं बढ़ेगा, आउटपुट इज गोइंग टू रिमेन सेम। आप कितना भी प्राइस बढ़ा लो, प्राइस बढ़ाने से आउटपुट नहीं बढ़ेगा, आउटपुट इज गोइंग टू रिमेन सेम। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? एएस कर्व जो होता है वो क्लासिकल्स का वर्टिकल होता है। आई एम अज्यूमिंग दैट ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट नाउ कि एएस जो है वो वर्टिकल आएगा। तो क्लासिकल थ्योरी कहती है कि अगर आप नॉमिनल वेरिएबल में चेंज करोगे तो नॉमिनल वेरिएबल में चेंज होने की वजह से कभी भी रियल वेरिएबल होते हैं आपके आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, ये सब चीजें। तो आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट इनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा अगर आप अपने सिर्फ नॉमिनल वेरिएबल में चेंज करोगे, बिकॉज वी हैव दी परफेक्ट वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी। आप जैसे ही चेंज इंट्रोड्यूस करोगे नॉमिनल वेरिएबल में दैट विल बी कंप्लीटली वाइप्ड आउट बाय अनदर नॉमिनल वेरिएबल। तो आपने जितने रेशियो से प्राइस बढ़ाया आपकी उतनी ही रेशियो से नॉमिनल वेजेस बढ़ गई, लेकिन आपकी रियल वेजेस में कोई चेंज नहीं आया, रियल डिमांड में, एम्प्लॉयमेंट में कोई चेंज नहीं आया, आउटपुट में कोई चेंज नहीं आया, एंड आपका एएस कर्व जो है वो वर्टिकल ही रहेगा। ठीक है, आई एम अज्यूमिंग दैट ऑल ऑफ दिस इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम देन रियल चेंज। ये तो हो गया नॉमिनल चेंज। अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रियल चेंज। अब मैंने आपको सेकेंड फैक्टर बताया था, टेक्नोलॉजी इंप्रूव्स।
सो टेक्नोलॉजी जो है वो एक रियल फैक्टर है। देखो आपका प्राइस हो गया, आपकी वेजेस हो गई, ये आपकी नॉमिनल चीजें हैं। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, कैपिटल इंप्रूव हो रही है, तो ये आपके रियल चेंजेस हैं। तो क्लासिकल्स ने बोला अगर आपको आउटपुट बढ़ाना है तो आपको रियल वेजेस में, रियल फैक्टर्स में ही चेंज करना पड़ेगा, नॉमिनल में तो कंप्लीटली वाइप आउट हो जाएगा। सो ये अगर लेट्स से आपका टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट होती है आपकी इकोनॉमी में, सच में स्ट्रक्चरल में इंप्रूवमेंट है। सेकेंड और थर्ड फैक्टर दोनों में सेम ही डायग्राम बनेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इंक्रीजेस, लेट्स से कैपिटल एम्प्लॉयड इंक्रीजेस, दोनों में सेम ही डायग्राम बनेगा। तो सेकेंड और थर्ड फैक्टर मैं आपको बता रही हूँ। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगेन वी विल बी ड्रॉइंग 4 डायग्राम्स। ठीक है, ये आपका हो गया एएस, यहाँ पे मैंने लिया प्राइस, यहाँ पे आई हैव टेकन आउटपुट, यहाँ पे मैंने लिया आपका वाई, सॉरी यस वाई, एंड यहाँ पे मैंने आपका लिया एल, ये हो गया आपका प्रोडक्शन फंक्शन। यहाँ पे मैंने आपका लिया रियल वेजेस, यहाँ पे मैंने लिया एल, यहाँ पे एल, यहाँ पे रियल वेजेस, नॉमिनल वेजेस। ठीक है, तो अर्लियर दिस वाज माय लेबर डिमांड, दिस वाज माय लेबर सप्लाई, और ये जो पॉइंट में नीचे लेकर आई, सो दिस वाज माय लेबर डिमांड एंड दिस वाज माय लेबर सप्लाई, एंड लेट्स से दिस मच माय प्रोडक्शन लेवल था और मैं इतना प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही थी। अब लेट्स से टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई, टेक्नोलॉजी के हिसाब से वर्कर्स जो थे वो मोर प्रोडक्टिव हो गए, वर्कर्स हैव बिकम मोर प्रोडक्टिव, मतलब वर्कर्स की देखो लेट्स से पहले वर्कर्स की एमपीएल थी 10,9,8,7,6,5, मतलब डिक्रीजिंग तो थी। अब हर एक पर्टिकुलर यूनिट पे देयर प्रोडक्टिविटी हैज बीन इंक्रीज, मतलब ये 12 हो गई, ये 10 हो गई, 9, 8, 7, 6, मतलब अभी भी डिमिनिशिंग तो है बट पहले से बढ़ गई है। ठीक है, अभी भी डिमिनिशिंग तो है बट पहले से बढ़ गई है। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस, लेबर प्रोडक्टिविटी इज स्टिल डिमिनिशिंग बट इट हैज इंक्रीज्ड ऑन द बेसिस ऑफ पर यूनिट। तो जब आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, सो वर्कर्स जो प्रोड्यूसर्स को लगेगा कि नाउ दे कैन हैव मोर लेबर्स, बिकॉज उनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी है, एफिशिएंसी अच्छी है, तो वो वर्कर्स को ज्यादा विलिंगनेस टू पे होगी, वो ज्यादा वेजेस भी देने को तैयार हो जाएंगे, और अगर वो ज्यादा वेजेस देने को तैयार हो जाएंगे, सो देयर लेबर डिमांड विल शिफ्ट राइटवर्ड, एलडी डैश, लेबर डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट होगी। लेकिन क्या टेक्नोलॉजी के इंप्रूव होने से लेबर सप्लाई पे कोई असर पड़ेगा? नो, लेबर सप्लाई पे कोई असर नहीं पड़ेगा, बिकॉज वर्कर्स को कोई लेना देना नहीं है जब तक प्राइसेस चेंज नहीं हो रहे हैं कमोडिटीज के, उनको सिर्फ रियल वेज से फर्क पड़ता है। तो अगर उन्हें विलिंगनेस टू पे ज्यादा मिल रही है तो वो कहेंगे ठीक है, हमारे लिए प्राइसेस सेम है, तो हम अपनी लेबर सप्लाई में कोई चेंज नहीं लाएंगे। आपका जो टेक्नोलॉजी है वो सिर्फ लेबर डिमांड को अफेक्ट करता है, लेबर सप्लाई को नहीं, तो लेबर सप्लाई विल रिमेन सेम। तो आपका पहला इक्विलिब्रियम था यहाँ पे, न्यू इक्विलिब्रियम आएगा यहाँ पे। तो अगर न्यू इक्विलिब्रियम यहाँ पे आएगा, तो अगर मैं इसको नीचे लाऊंगी तो इसका मतलब आपकी आपकी रियल वेजेस बढ़ गई। पहले आपकी रियल वेजेस इतनी थी, अब रियल वेजेस पे आपकी सप्लाई इतनी है, डिमांड इतनी है, लेट्स से, तो आपकी जो वर्कर्स की डिमांड है वो बढ़ाओगे तो आपकी रियल वेजेस विल इंक्रीज, आपकी रियल वेजेस इंक्रीज होंगी इकोनॉमी की, आपकी रियल वेजेस, आई एम सो सॉरी दैट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक डायग्राम डिजिटली। सो आपकी जो लेबर डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी एल डी डैश पे, सो आपकी रियल वेजेस इकोनॉमी की इंक्रीज होगी, एंड व्हेन योर रियल वेजेस ऑफ द इकोनॉमी इंक्रीजेस, ओनली आफ्टर दैट, मैं इस पॉइंट को नीचे लेके आऊंगी, तो पहले आप यहाँ प्रोडक्शन कर रहे थे, अब आप यहाँ प्रोडक्शन कर रहे हो, देन योर आउटपुट विल इंक्रीज, एंड इफ योर आउटपुट विल इंक्रीज देन योर एएस कर्व विल शिफ्ट टू एएस डैश। ठीक है, तो अगर आप रियल वेरिएबल में कोई चेंज लेकर आओगे तो ही आपका रियल वेरिएबल में चेंज आएगा, अदरवाइज आपका सिर्फ नॉमिनल वेरिएबल्स में ही चेंज आएगा। ठीक है, तो ये आपके 3 फैक्टर्स थे। अब आप जो बचे हुए 3 फैक्टर्स हैं, दैट इज आपके ये वाले, ये तो मैंने तीनों करा दिए। अब आपका बचा है ये इमिग्रेशन और इमाइग्रेशन वाला। एक के केस में लेबर सप्लाई बढ़ जाएगी, एक के केस में लेबर सप्लाई कम हो जाएगी। लेबर डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ये वाला आपका होमवर्क है, यू हैव टू डू इट बाय योर ओन। अगर आपसे नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी डूइंग दैट।
तो हम लोगों ने ये थ्योरी यहाँ तक कवर कर ली है। प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस, एएस एडी हमने देख लिया है। अब हमें नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है बेसिकली क्लासिकल का एग्रीगेट डिमांड कर, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, और क्लासिकल्स की ही लोनेबल फंड थ्योरी, सॉरी क्लासिकल्स की ही मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी भी नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप you like the video. This concept is really clear for all of you. Still, if you have any doubt, just post it in the comment section, and please, if you are really liking my content, please do like, share and subscribe my video, my YouTube channel and Easynomics. आप मुझे Instagram पे भी फॉलो कर सकते हो। दोनों का Instagram का लिंक आप मुझे Telegram चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हो, अनअकैडमी पे भी ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे कुछ क्लासेस मेरी फ्री होती हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं। सो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, अनअकैडमी, जहां फॉलो करना है कर सकते हो, बट प्लीज अभी सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय बाय एवरीवन, विल मीट यू सून इन अनदर वीडियो एंड आई विल ब्रिंग पार्ट 3 ऑफ दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।